Hello everyone. First off, I, Nilesh Indira Murumkar, would like to welcome you all to my YouTube channel. Folks, I'm back. Oh yes, I'm back. And to be very honest folks, you people have compelled me to shoot this video. क्योंकि जो हमारा पिछला वीडियो था ना, you people have responded really very well. And thank you very much for that. अभी भी वो वीडियो बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है. And if you haven't watched that video, ये जो आई बटन है ना, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को, उस लिंक को क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हो. Folks, I'm back with some more books. You can get to see it in my hand. First off, let me tell you folks, I'm going to divide this video into 3 parts. First off, I'm going to tell you about this video. In the second part, I'm going to tell you कि आप इन किताबों को कहाँ से खरीद सकते हो. And last but not the least, I'm going to address an issue. You might ask, sir, what's that issue that you're going to address? The issue is with the parents. उनके क्या मतलब ऐसा क्या issue है parents को? First off, what is an issue that most of the parents come up with the complaint that कि उनके बच्चे हैं ना बिल्कुल ही पढ़ते नहीं हैं, you know, और ऐसा कहा भी जाता है कि nothing builds your personality better than a good reading does. So पढ़ने का महत्व बहुत ज़्यादा है और पेरेंट्स चाहते हैं कि you know the kids or the children should inculcate reading habits in them. So what is a proper solution or a very positive solution for that? I'm going to talk about that at the end of this video. So let's get started with the very first part. So यह वीडियो किसके लिए है और ये किताबें क्या है? यह वीडियो है सबके लिए, those who would love to read all the time, जो कि जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है या फिर उनको एक भूख के जैसा लगा रहता है कि यार मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है. और ऐसे भी लोगों के लिए है कि जिनको बहुत ही कम समय मिलता है इन किताबों को पढ़ने का, लेकिन दे स्टिल वांट टू रीड क्योंकि ऑफिस में वर्क ही इतना ज़्यादा होता है. They work in the office for 12 hours, for 14 hours and they hardly get some time to read these books. So उनके लिए भी है. And you know folks very well, this is a modern era and in this era we people have turned techno-savvy. हमेशा हम एक तो लैपटॉप के सामने होते हैं, एक तो मोबाइल के सामने होते हैं या फिर we make the most of the use of internet क्योंकि हमारा वर्क ही सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है and we hardly get any time to read. लेकिन रीडिंग को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है. यू मस्ट bear the fact in your mind. So let's get started with the very first part. Okay folks, the very first book that I'm going to tell you about, yes, my favorite and always favorite, it is Know About Swami Vivekananda. अभी इस किताब की स्पेशलिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ लेट मी टेल यू, इसकी साइज देखिए आप, इतनी सी साइज है, ठीक है. अगर मैं पेजेस के बारे में बता दूं आपको तो दे आर जस्ट 80 पेजेस. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट फोक्स, इसका जो फॉन्ट साइज है ना इतना बड़ा बड़ा है, मोटा सा है. आप अगर इसको मैं दिखा सकता हूं तो, और इतना स्पेसिंग भी बहुत ज़्यादा है. अगर इसको एक्चुअल जो स्टैंडर्ड साइज होती है किसी भी किताब की उसके साइज में डाला जाए और उस फॉन्ट के साइज में उनके लेटर्स को डाला जाए तो ये हार्डली इट इज़ अ बुक ऑफ 30-35 पेजेस, नॉट मोर देन दैट. इट मीन्स दैट ये मिनटों का काम है. यू कैन जस्ट रीड इट इन वन गो. इन अ फ्यू मिनट्स यू कैन जस्ट नो मोर अबाउट स्वामी विवेकानंद. और ये किताबें शायद ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है एंड स्पेशली फॉर किड्स, बिकॉज द लैंग्वेज इज रियली सिंपल और आप कोई भी इसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकता है. या द नेक्स्ट book is Know About वीर सावरकर. आप इनके बारे में भी जान सकते हो इन किताब में. The next one is Know About विनोबा भावे. Now you might talk, sir, you are only telling about know about Vinoba Bhave, know about Sardar Vallabhbhai Patel, know about Rabindranath Tagore and all. Oh yes, I am talking about great personalities because I wanted to know more about them. मैं उनके बारे में जानना चाहता था. So that's why I have picked these books related to great personalities. But इनकी जो सीरीज़ है ना ये सिर्फ personalities से सीमित मतलब यहाँ तक ही सीमित नहीं है. You can know more about. तो मैं इसके जो पीछे लिखा हुआ है ना उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ कि ये किताब में आप
या फिर इस जैसे किताब में आप क्या क्या पा सकते हो. So you can talk or you can know more about famed personalities, countries, languages, different professions, computers, health and fitness, sports, world, traveling, destinations, musical instruments, that's great, hobbies, spiritual teachings, health disorders, and history. Or the series goes on. I will tell you how to find that. Okay. The last but not the least, that is know about सरदार वल्लभ पटेल. ओके, तो इनके बारे में भी आप जान सकते हो, स्पेशली आप इनको बच्चों को दे सकते हो ताकि जो भी आपके चाहते पर्सनालिटीज़ हैं, जो आप चाहते हो उनको, ऐसे पर्सनालिटीज़ को या फिर ऐसे किताबें खरीदी करके यू कैन गिव इट टू योर किड्स सो दे कैन नो मोर अबाउट दैम. और यू नो दैट कि बच्चों का और बच्चे एक ऐसा पीरियड है, ऐसा समय है कि आप उनकी पर्सनालिटी को, यही वक्त है, अच्छी तरह से शेप कर सकते हो. एंड रीडिंग कैन हेल्प यू अ लॉट. ओके, यह जो मेरे पास रिमेनिंग 4 जो बुक्स है, एक डिफरेंट पब्लिकेशन से हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगा. तो लेट्स टॉक अबाउट देम टू. ये भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में है. इट इज़ अबाउट सुभाष चंद्र बोस. सो अगर इसकी प्राइस देखेंगे, ये जो पहला जो था पब्लिकेशन, उसकी जो किताबों की प्राइस है वो 40 रुपीज़. इट इज़ वेरी चीप. और ये जो दूसरा पब्लिकेशन है और इसकी जो प्राइस है इट इज़ जस्ट 30 रुपीज़, 30 रुपये. इट इज़ नथिंग, और 30 रुपीज़ तो आपको इतना अगर मिल रहा है तो यू मस्ट इन्वेस्ट योर मनी इन दैट. ओके, द नेक्स्ट माई पर्सनल फेवरेट, शहीद भगत सिंह. यू कैन नो मोर अबाउट दैम. और इनके पेजेस जो देखोगे अगर आप, तो दे आर जस्ट 63 पेजेस. या इनके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा आपको. द नेक्स्ट अगेन माय फेवरेट, महाराणा प्रताप. इसी तरह से आप रविंद्रनाथ टैगोर भी लिखा हुआ है नीचे. पीछे अगर आप देखोगे तो वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी दिया हुआ है. ऐसी किताबें एक्चुअली अवेलेबल है. यू मस्ट गो एंड बाय दैम. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट इज़ अबाउट मदर टेरेसा. तो ये हो गया किताबों के बारे में. अभी आप कहाँ से खरीदोगे उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ. नाउ ऑल दिस बुक्स, सम ऑफ देम आर फ्रॉम डिफरेंट पब्लिकेशन एज आई ऑलरेडी कन्फर्म्ड इट. तो जो नो अबाउट वाली सीरीज़ है ना, दैट इज़ ऑफ मेपल प्रेस प्राइवेट लिमिटेड. द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो यू विल डायरेक्टली गो टू दैट वेबसाइट. उस वेबसाइट के ऊपर जाओगे आप और वेबसाइट में वहाँ पे सर्च बार आएगा. वहाँ पे सर्च करो, आप जो भी पर्सनालिटीज़ को जानना चाहते हो, उनके बारे में पढ़ना चाहते हो या फिर जो भी किताब के बारे में जानना चाहते हो, यू जस्ट टाइप दैट नेम एंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट पर्टिकुलर बुक ओवर देयर. फॉर एग्जांपल, नो अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, नो अबाउट बिल गेट्स, इनके बारे में भी आप जान सकते हो. सो द बुक विल अपीयर ओवर देयर. और नीचे कुछ और लिंक होंगे जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया. उसके ऊपर क्लिक करोगे तो इट विल डायरेक्ट यू टू दैट पर्टिकुलर साइट कि आप यहाँ से फिर ये किताबें खरीद कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो. वेरी सिंपल वे टू बाय. द सेम इज विथ दिस अनदर सीरीज. सो ये जो दूसरी सीरीज थी जो मैंने बताया था, इट इज़ ऑल अबाउट डायमंड बुक्स. उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसी तरह से आप उस लिंक के सहारे वहाँ से किताबें खरीद सकते हो. I hope you people have got enough information as far as how to purchase these books online. Now last but not the least, it is very important that I am going to address an issue. जैसे कि मैंने कहा था कि माता पिता की हमेशा कंप्लेंट रहती है, the kids don't read. जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं उनको तो पता ही है कि पढ़ने का महत्व क्या है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको इसके बारे में बिल्कुल पता है कि अगर वो पढ़ लेते हैं उनकी ज़िंदगी में तो उनकी ज़िंदगी शायद कुछ और हो सकती थी. एंड दैट्स वाई दे डोंट वांट देयर किड्स टू डू द सेम, और सॉरी, टू मेक द सेम मिस्टेक. एंड दैट्स वाई दे वांट देयर किड्स टू रीड, दे वांट देयर चिल्ड्रन टू रीड. और हमेशा फोर्स करते रहते कि पढ़ो 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 पढ़ो. लेकिन फोर्सिंग इज समथिंग लाइक अ स्प्रिंग. फोर्सिंग एक स्प्रिंग की तरह होता है, जितना ज़्यादा उसको दबाओगे ना उतना ज़्यादा वो उछाल लेगा.
तो हमेशा याद रखो कि फोर्स से अच्छा है कि हम ही क्यों ना उनके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं. नाउ लेट मी शेयर दिस अ वेरी वेरी गुड वे टू कम आउट ऑफ दिस particular thing, and it is actually a very positive solution. Folks, this is a bitter reality. पेरेंट्स की ज़िंदगी की एक bitter reality है, इसको हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. Now we people are like, the moment we wake up, we have got mobile in our hand. The moment we wake up, we brush our teeth and we sit in front of TV. The moment we wake up, we turn on the internet and then we search all the notifications and we keep on messaging, or we keep on looking all those looking for all those messages in our mobile कि इसका मैसेज तो आया नहीं होगा, उसका मैसेज तो आया नहीं होगा, फेसबुक पे क्या नोटिफिकेशन है, ऑल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. सो फोक्स, द किड्स दे आर वेरी गुड एट इमिटेटिंग. वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छी तरह से लोगों को इमिटेट करते हैं. एंड सम वे और द अदर दे ऑब्जर्व योर बिहेवियर. क्या मेरे मम्मी पापा उठने के पहले ही, मतलब उठने के एकदम तुरंत बाद मोबाइल उनके हाथ में रहता है. दे ऑब्जर्व यू एंड सम वे और द अदर दे ट्राई टू डू द सेम इन देयर लाइफ, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चलते रहता है कि येस, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. फोक्स, ऑल्टर ऑल दोज थिंग्स विद समथिंग रियली ग्रेट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. इन चीज़ों को अभी हमें ऑल्टर करने का वक्त आ चुका है. हाँ, मोबाइल देखो, ज़रूर देखो, मैं आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे निकालो जहाँ पे जैसे दिन निकलेंगे, आप उठोगे, यू विल नॉट पिक दैट मोबाइल इन योर हैंड, बट इंस्टेड आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ और आफ्टर टेकिंग बाथ, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वेरी कंडीसिव एटमॉस्फियर. कैसे? बच्चों को फोर्स मत करो, आप खुद, जैसे कि आप यू माइट बी अ फादर और मदर और अंकल और आंट और ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी हो, एक घर पे एटमॉस्फेयर क्रिएट करो कि जैसे ही सबका ब्रश हो गया, फ्रेश हो गए, ब्रेकफास्ट हो गया, नाउ गो इन अ पर्टिकुलर रूम एंड स्टार्ट रीडिंग. एवरीवन विल रीड समथिंग फॉर 30 मिनट्स, फॉर 45 मिनट्स एटलीस्ट. न्यूज़पेपर हो गया या फिर किताब होगी अपनी फेवरेट, उसको पढ़ना शुरू करो. देखो 2-3 हफ्ते में बच्चे आपको ऑब्जर्व करेंगे. धीरे धीरे उनको एक्चुअली समझ में आएगा कि रीडिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे माता पिता पढ़ रहे हैं और मुझे भी पढ़ना चाहिए. समवे और अदर अगर आप थोड़े दिन के बाद उनको थोड़ा सा भी बोल दूंगे, यार चलो हम आज रीड करते हैं, दे विल डेफिनेटली अकम्पनी यू, दैट आई गारंटी. या होप यू लव दिस सॉल्यूशन. ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे फोक्स. अगर सच्ची में यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, डू हिट दैट लाइक बटन एंड डू कमेंट बिलो दैट यू हैव रियली लव्ड दिस वीडियो. मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा नए वीडियो बनाने के लिए. एंड डेफिनेटली डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जल्दी जानकारी मिल जाए. आई एम प्लानिंग टू कम अप विथ वन मोर बुक, जो कि मेरी फेवरेट है, लिटरेचर में से है. तो मैं उस बुक का शायद रिव्यू या फिर उसको स्टोरी फॉर्म में आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा, ताकि ये सीरीज़ हमारी आगे भी बढ़ती रहे. होप यू हैव एन्जॉयड दिस, होप यू हैव liked it. Take care all of you. Bye for now. We'll see you soon.